welcome you all to the very first lecture of a PSIR series. So, as I've told you that I'm going to start creating video lectures for PSIR and about it being my graduation subject and now me pursuing masters in the same. So, yeah. Okay, and it's also my own optional subject in UPSC CSC. So, we'll start with the very first topic of our syllabus. I've told you all this in last video, that was the introductory video. But yeah, so without further ado, let's just dwell and go directly towards our discussion. So, since we have to make our foundations very strong and clear, there must be left no ambiguity as far as certain basic terms are concerned. So, firstly, if we are talking about political theory, and then we have to look into what all the meaning and approaches are, we first know what the word theory is. What does it mean, right? So, what is theory will be my first part of discussion as far as this topic is concerned. So, theory, I've tried to define it in the shortest sentence possible, is a hypothesis which can be ratified. So, a hypothesis is what? A hypothesis is an assumption you create and then you test it. So, every assumption for that matter may not be able to be tested, right? So, a hypothesis is such an assumption which you can test. So, when you form so for the purpose of testing, there has to be systematic creation of that hypothesis. There can be some parts of it, there can be some aspects of it. So, this kind of a hypothesis is called theory, and it can be ratified, which means it can be tested and analyzed and thereafter concluded to be true or false. What I mean to say is, when we do a science experiment in school, otherwise, we'll we all have done that, right? We all have been through the word hypothesis. We are familiar with this word, and we are also familiar with how do we rectify and test our hypothesis. In the same manner, in the theory is such an hypothesis which can be ratified, and thereafter we can conclude it to be true or false. And how true or how false, that qualitative aspect we can also look into. Okay, so this kind of a hypothesis which can be ratified is a theory. I'm really sorry, I forgot to be bilingual, so let me explain in Hindi now. तो कोई भी ऐसी assumption का कोई भी ऐसी जो आप एक चीज मान के चलते हैं, कि कोई भी एक ऐसी चीज मान लेते हैं जो इस तरीके की कोई चीज जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपने माना है क्या वो सही है या गलत है, उस और अलग-अलग पैरामीटर्स यानी कि मापदंडों पे उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं. I'm sorry, I'm being very bad with Hindi, but that's I try to be as much bilingual. मैं जितना ज़्यादा कोशिश करती हूँ इस चैनल पे कि दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँ, हिंदी और इंग्लिश, but I'm more comfortable with English while it comes to नरेटिंग थिंग्स, बिकॉज हम जो यूजुअल हिंदी बोलते हैं वो उनके इन सारे वर्ड्स जैसे हाइपोथेसिस और रेटिफाइड जैसे वर्ड्स के मतलब मीनिंग क्या होते हैं, मेरी यूजुअल हिंदी वोकैबुलरी में ये सब इन्वॉल्व नहीं है. तो आई एम सॉरी अबाउट इट. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो आई एम श्योर कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता दिखेगा with the people who would like to know things in Hindi. But yeah, I'm really trying to work upon it and improve in those aspects as well. I'm sure you can look into it, and I'll also try from the next time that I look into the meanings of certain words before I record the lecture. And I'm really sorry for this time. I probably put the meanings of these words in Hindi in the description box or in the comment below.
So for now I've decided that let me explain in the language I can best and just use the common Hindi vocab that I am used to of. So जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि मतलब जहाँ पे भी जितना possible हो पाएगा, I'm not saying my Hindi is too bad, but certain technical terms I may not know because that has not been my medium of instruction. So हम bilingual तो रहेंगे, but then please allow me that liberty कि मुझसे आप लोग वो expectation ना रखें कि मैं आपको हर एक word का meaning बता पाऊंगी in हिंदी. All right. तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जब हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी इंग्लिश मीडियम वाले पर्सन को हर चीज़ पूरी इंग्लिश में ही पढ़ा दी जाए। जब हम बाइलिंगुअल रहते हैं तो थिंग्स आर जस्ट ईज़ियर टू अंडरस्टैंड एंड हमारा फ़ोकस तो एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे होना चाहिए ना कि लैंग्वेज पे। आई एम श्योर कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी पर्सन जिसको अगर हिंदी में कोई चीज़ बेटर समझ में आएगी बिकॉज़ ऑफ इट बीइंग द मदर टंग, तो उसको एक बार समझ आ जाएगी फिर तो वो लिख ही देगा उसे इंग्लिश में भी, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो बाइलिंगुअल आई विल बी, बट सर्टेन टेक्निकल टर्म्स शायद मैं अगर आपको बता भी दूं, अनलेस आप लिटरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं वो टेक्निकल टर्म्स आपको गूगल करके बता भी दूं और उनका यूसेज करूं अपनी एक्सप्लेनेशन और नरेशन में, तो इट वोंट बी मतलब आप लोगों को भी कंफर्ट नहीं एस्टेब्लिश होगा उसके साथ, है ना, क्योंकि दैट इज नॉट द काइंड ऑफ टर्म्स इवन यू वुड हैव हर्ड ऑफ, तो अगर मैं यूज कर दूं तो राइट। सो या दैट्स अबाउट इट। तो अभी मूव करते हैं थ्योरी वर्सेस थॉट पे। तो हमने समझ लिया कि थ्योरी क्या है। अब थ्योरी वर्सेस थॉट क्यों समझना ज़रूरी है? देखिए, थ्योरी और थॉट दो वर्ड्स हैं जिनको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ताकि हम उन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ ना करें, तो हमें ज़रूरी है कि हम उनके मीनिंग में जो डिस्टिंक्शंस हैं उन्हें एस्टैब्लिश कर लें पहले ही अपने लिए, है ना? तो थ्योरी और थॉट में क्या डिफरेंस है? थ्योरी इज ऑर्गेनाइज्ड, it is organized means it's more systematic and it gives solution and is predictable. तो अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू थ्योरी, एंड प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है। इस तरीके की चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती है व्हेन इट कम्स टू थ्योरी। बट जो थॉट है वो काफी रैंडमाइज्ड होता है और इट इट कैन बी अनऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी सब्जेक्टिव। मतलब अगर कोई सब्जेक्टिव चीज़ है, अगर इसमें पर्सनल बायसेस इन्वॉल्व हैं, तो फिर उसको रेक्टिफाई और टेस्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, एंड इट कैन बी अनप्रैक्टिकेबल ऑल्सो। मतलब रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज करना, उसको अडॉप्ट करना भी हो सकता है कि फीजिबल ना हो, प्रैक्टिकेबल नहीं हो वो चीज़। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन रियल लाइफ अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट वन इज थियोरी वर्सेस फिलोसफी। इनका भी बहुत जरूरी है मीनिंग में जो डिफरेंशिएशन है वो एस्टेब्लिश करना, बिकॉज दे शुड नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली कॉज दे आर नॉट साइनोनियम्स। ओके, तो थियोरी जो है वो फैक्चुअल होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, वाइल फिलोसफी जो है वो आइडियलिस्टिक हो सकती है, कैन बी बेस्ड ऑन मॉरल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो मतलब फिलोसफी में भी सब्जेक्टिविटी और आइडियलिस्टिक का मतलब होता है जो एक्चुअल में रियल लाइफ में प्रैक्टिकेबिलिटी जिसकी ज़्यादा नहीं होती है, कुड बी प्रैक्टिकेबल बट जनरली इज नॉट अप्लाइड इन रियल लाइफ। इस तरीके की चीज़ों को आइडियलिस्टिक चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छी दुनिया के बारे में सोचना, विच कुड बी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स और हेवन लाइक वर्ल्ड। तो इस तरीके की चीज़ें आइडियलिस्टिक चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है थियोरी और फिलोसफी में। सो दीज टू वर्ड्स कैन ऑल्सो नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड डू नॉट डू सो। तो ये तो हमारी एस्टैब्लिश हो गई बेसिक चीज़ें जो कुछ वोकेबलरी की ज़रूरत होती है इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के आंसर्स लिखने के लिए। तो जहाँ पे वो चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होनी चाहिए, अगर आप उनका इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं तो आपके आंसर की क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था आगे की चीज़ें समझने के लिए भी कि इन सब चीज़ों में डिस्टिंक्शन बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश हो।
फॉर द सेक ऑफ गुड फाउंडेशन। नेक्स्ट मूव करेंगे नीड ऑफ पॉलिटिकल थियोरी पे। तो क्या नीड है, क्यों हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थियोरी के बारे में, हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, पर क्यों पढ़ने वाले हैं, व्हाट क्या जरूरत क्या है पॉलिटिकल थियोरी की, थियोरी पता चल गया है। अब व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, वी नो व्हाट इज थियोरी, राइट, अभी हमें पता चल गया है, वी हैव डन दैट इन प्रीवियस स्लाइड। तो क्या नीड है, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल फैक्ट्स। तो जो पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं वर्ल्ड में, उनका सिस्टमैटिक एनालिसिस हो सके। मैंने हम जब बात कर रहे थे व्हाट इज थ्योरी के बारे में, तो हमने ये चीज अपने लिए क्लियर कर ली थी कि थ्योरी एक ऐसी चीज होती है जिसको रेटिफाई कर सके, जिसको एनालाइज और टेस्ट कर सके। तो चीजों का सिस्टमैटिक एनालिसिस हो, इसलिए उनका थ्योरी होना जरूरी है। तो ऐसे पॉलिटिकल फैक्ट्स जिनका एनालिसिस हो पाए, उनके लिए पहले उनकी पॉलिटिकल थियोरी क्रिएट करना जरूरी है, इसीलिए नीड है पॉलिटिकल थियोरी की। और एक इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस हो सके पॉलिटिकल इवेंट्स का। देखो जब भी हम ये अब और कंडक्टिंग रिसर्च और जनरलाइज अ पॉलिटिकल एक्ट और इवेंट एंड ड्रॉ अ कंक्लूजन, तो ये सारे फीचर्स थ्योरी के हैं कि वी कैन एनालाइज देम। अब आप एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में कंपैरिजन कब एस्टेब्लिश करोगे, जब आपके पास एक सिस्टमैटिक थ्योरी की अवेलेबिलिटी होगी। किसी भी तरीके का एनालिसिस, किसी भी तरीके का कंपैरिजन, किसी भी तरीके की रिसर्च, और उसके बाद जो फाइंडिंग्स है उनकी जर्नलाइजेशन किस एक्सटेंट तक है, और क्या हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए तभी पॉसिबल है जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक थ्योरी एस्टेब्लिश करें, क्योंकि थ्योरी ही वो हाइपोथेसिस है जिसकी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, राइट। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हमने पॉलिटिकल, एक बार फिर से बोलूंगी कि अगर हमने पॉलिटिक्स से रिलेटेड या पॉलिटिकल से रिलेटेड किसी भी चीज़ को टेस्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, एनालाइज करना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, जनरलाइजेशन एस्टेब्लिश करनी है, या फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, तो उन सब पॉलिटिकल इवेंट्स और फैक्ट्स के बारे में, या पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बारे में, या पॉलिटिकल थॉट के बारे में एक थ्योरी एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल है। क्या सब चीज़ें, उनका एनालिसिस, कंपैरिजन, इंटरडिसिप्लिनरी कंपैरिजन, कंडक्शन ऑफ रिसर्च, और जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स, कहाँ तक पॉसिबल है, कितना पॉसिबल नहीं है, एंड ड्राइंग आउट ऑफ कंक्लूजन्स। ऑल राइट। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब कुछ फाउंडेशनल चीज़ें जानने के बाद, और ये जानने के बाद कि हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि जो हमारा टॉपिक है इटसेल्फ, उसका वो क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, राइट। तो इसमें जो ये मीनिंग वाला पार्ट है, अब हम वो क्लियर करने जा रहे हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है हमारी डिस्कशन का। तो चलिए देखते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी जो है इज अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड रिलेशनशिप encompassing political matters that focus and organize inquiry to describe, explain and predict political events and behaviors। तो सिंपली वही जो हमने अभी तक अपने दिमाग में समझा है थियोरी के बारे में, उसमें ही थोड़ा सा और एक, जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के रिलेशंस के, सॉरी, ऑप्शनल के स्टूडेंट के जैसे एक वो कैब में हम उसकी मीनिंग को डिस्क्राइब कर सके, तो उसके लिहाज से, उसके एस्पेक्ट से हम ये डेफिनेशन, ये एक अपनी तरफ से एक डिस्क्रिप्शन देंगे पॉलिटिकल थियोरी के मीनिंग की, जो कि है कि एक स्पेसिफाइड रिलेशनशिप जिसमें सारे पॉलिटिकल मैटर्स या किसी भी तरीके के पॉलिटिकल मैटर्स जो फोकस करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं एक इंक्वायरी, किस पर्पस से, डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए पॉलिटिकल बिहेवियर्स को, उस सेट ऑफ स्पेसिफाइड रिलेशनशिप्स को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी, एक बार फिर से बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिकल थ्योरी एक सेट है ऑफ स्पेसिफाइड रिलेशनशिप्स, मतलब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हम
चीज़ें एस्टैब्लिश कर लेते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं बिटवीन पॉलिटिकल मैटर्स, और जिनका फोकस क्या होता है, अ, या जिनकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है, एक इंक्वायरी करना, मतलब उसका एनालिसिस करना, किस पर्पस से, वाई, क्यों करना एनालिसिस, क्योंकि हम डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्लेन कर सके और प्रिडिक्ट कर सकें पॉलिटिकल इवेंट्स को और लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को। ठीक है, और इट अटेम्प्ट्स टू अराइव एट जर्नलाइजेशन, इन्फरेंसेस और कंक्लूजन्स। तो क्या करने की कोशिश करती है, जर्नलाइजेशंस, इट अटेम्प्ट्स टू establish generalizations, inferences or conclusions with the help of all disciplines, not only political science. तो जब हम वो एनालिसिस, वो रेटिफिकेशन के प्रोसेस में होते हैं, तो हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तक सीमित नहीं रहते हैं, हम उसमें सोशोलॉजी के एस्पेक्ट्स, मतलब सोसाइटी के एस्पेक्ट्स, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करते हैं, हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करते हैं, हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज हमने लोगों का बिहेवियर को स्टडी करना होता है। तो इस सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कंडक्ट करते हुए हम इस्टेब्लिश करते हैं जनरलाइजेशन, इन्फरेंसेस और कंक्लूजन्स विद द हेल्प ऑफ ऑल डिसिप्लिन, है ना। और वी आर नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल साइंस जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। अब एक थिंकर को क्योंकि कोट करना बहुत ज़रूरी है, तो ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं बाय एंड्रयू हैकर। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेड सर्च ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्टेट, गुड सोसाइटी on one hand, and a disinterested search for knowledge of political and social reality on other. तो political theory को उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बताया है। किस चीज का कॉम्बिनेशन, एक हाथ पे तो ऑन वन हैंड अबाउट गुड स्टेट और गुड सोसाइटी, यानी कि उन्होंने एक हाथ पे तो हम, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि क्या होती है गुड स्टेट और गुड सोसाइटी, यानी कि हम पॉलिटिकल थियोरी के अंदर ड्वेल करते हैं एक तरफ कि व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं व्हाट इज, मतलब ऑन अदर हैंड वी आर लुकिंग इनटू पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी कि व्हाट इज। ठीक है, एक तरफ हम ड्वेल करते हैं व्हाट इज, एक तरफ हम ड्वेल करते हैं व्हाट शुड बी, मतलब एक तरफ हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज है, और एक तरफ हम एस्टेब्लिश करते हैं कि एक गुड स्टेट या गुड सोसाइटी होनी कैसी चाहिए या उसनी चाहिए, राइट। तो ये एक तरफ हम व्हाट ऑट टू बी पे फोकस करते हैं, एक तरफ हम व्हाट इज द रियलिटी पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन होती है, इस तरीके की जो कंबाइंड फॉर्म होती है, उसको पॉलिटिकल थियोरी कहा है एंड्रयू हैकर ने। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और ये सब चीजें वो ऐड करते हैं कि ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड सर्च। डिसइंटरेस्टेड सर्च को आप यहाँ पे फोकस करें इन दो वर्ड्स पे, डिसइंटरेस्टेड सर्च, जो दो बार अलग अलग जगहों पे उन्होंने एक ही सेंटेंस में यूज किया है। तो व्हाट ही वांट्स टू से विद respect to disinterested search, what does disinterested search signifies over here is that one has to be as objective as possible, और subjectivity कम से कम as less subjective as possible, और subjectivity की existence जो है इस तरीके की सर्च में, इस तरीके की एनालिसिस या स्टडी में, वो सबसे कम होनी चाहिए, जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए। तो एकदम ऑब्जेक्टिव स्टडी विदाउट एनी काइंड ऑफ पर्सनल बायस, which means disinterested search, which is what Andrew Hackers mean and intends to convey with the words disinterested search, is that it has to be free of personal biases. It has to be as objective as possible. So that's it for today. आज हमने अपना कवर किया है what is theory, and then we looked into the answer of it, and then thereafter we established our distinctions between theory and thought, and then we went on to distinguish between theory and philosophy. Then we then we went on to find out what all what is the need of political theory, why do we need it, right, and what is its
requirement, why it is required, what is its utility. Then we looked into the meaning of theory, political theory, sorry. So I hope all of this till now is clear to you all. तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ गो अहेड एंड कमेंट करें. अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, because why not? Because it's free, right? It's absolutely free. You can subscribe to the channel, and yeah, just subscribe to the channel because it's free, and just subscribe to the channel because why not? Okay, so just go ahead, do that, and do share the video with relevant people, all those people who you think can find this content relevant. Please go ahead and share with them, spread the information through word of mouth, or just share them wherever you can. Yeah, that's it for today. See you tomorrow.